السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں چاند اور مصنوعی سیارے سیب کی طرح زمین پر نہیں گرتے، وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ان کی رفتار کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر زمین کی ثقلی کشش نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ہم زمین پر نہ ہوتے، تمام اشیاء خلا میں چلی جاتی، چاند زمین کے اطراف گردش نہ کرتا۔ آج ہم زمین کا ثقلی اسرا سے متعلق پڑھیں گے۔ اسرا یعنی کیا؟ کسی جسم پر قوت لگائی جاتی ہے تو اس کے رفتار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اکائی وقت میں رفتار میں تبدیلی اسرا کہلاتی ہے۔ زمین کی ثقلی قوت کی وجہ سے کسی جسم میں اسرا پیدا ہوتا ہے تو اسے زمین کا ثقلی اسرا کہتے ہیں اور اسے علامت جی سے ظاہر کرتے ہیں۔ اسرا سمتی مقدار ہے۔ اونچائی سے چھوڑی ہوئی شے پر ثقلی قوت کی وجہ سے رفتار میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یعنی ثقلی اسرا پیدا ہوتا ہے جو زمین کے مرکز کی جانب یعنی افق کے عمودی سمت میں ہوتا ہے۔ زمین کا ثقلی اسرا ارتھس گریویٹیشنل ایکسلریشن۔ زمین کا ثقلی اسرا جسے علامت جی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سطح زمین پر جی کی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم ضابطہ معلوم کریں گے۔ زمین ہے، اس کی کمیت ہے ایم، زیادہ بڑی کمیت کو کیپٹل ایم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے باہر ایک جسم ہے جس کی کمیت اسمال ایم سے ظاہر کی گئی ہے۔ ایک جسم ہے جس کی کمیت اسمال ایم سے ظاہر کی گئی ہے۔ جسم کا زمین کے مرکز سے فاصلہ آر سے ظاہر کیا گیا ہے۔ زمین کے مرکز اور جسم کا درمیانی فاصلہ برابر آر۔ زمین کی قوت ثقل جسم پر ایف، اور ہمیں معلوم ہے قوت ثقل کا ضابطہ۔ ایف برابر جی ایم ایم بٹے آر کی دوسری قوت، یعنی ایف برابر جی ایم ون ایم ٹو معلوم ہے ہم کو۔ ایم ون کی جگہ پر یہاں پر ابھی جسم کی کمیت ہم لیں گے، یعنی زمین کی کمیت کیپٹل ایم، جسم کی کمیت ایم ٹو کی جگہ پر ایم لے رہے ہیں ہم، بٹے آر کی دوسری قوت۔ اسی طرح دوسرا ایک ضابطہ ہمیں معلوم ہے نیوٹن کے دوسرے قانون کے مطابق، قوت اور اسرا کے تعلق سے، ایف برابر ایم اے۔ اب یہاں پر اسرا اے ہے۔ اب زمین کا اسرا اگر لیتے ہیں زمین کی قوت کے تعلق سے تو اے کی جگہ پر ہم جی لکھیں گے، تو ایف برابر ایم جی، یہ ہم کو ضابطہ ملتا ہے۔ تو اے کی جگہ پر ایم جی لکھنے پر، یعنی جی لکھنے پر ایف برابر ایم جی حاصل ہوا۔ اب ایف کی جگہ پر اس طرح یہ ایم جی درج کریں گے، تو اس طرح یہ ایم جی برابر جی ایم ایم بٹے آر کی دوسری قوت حاصل ہوا۔ تب یہاں پر ایم مشترک ہے، اس لیے یہ ایم اور یہ ایم کٹ ہوا، تو ضابطہ حاصل ہوا جی برابر جی ایم بٹے آر کی دوسری قوت۔ جی ایم بٹے آر کی دوسری قوت۔ اب اگر کوئی جسم
सतह जमीन पर है। जिस्म अगर सतह जमीन पर है तो जिस्म का जमीन के मरकज से फासला उसके निस्फ कुतर के मसावी होगा, यानी कैपिटल आर ये जमीन का निस्फ कुतर है। तो आर की जगह पर हम इस तरह कैपिटल आर लिखेंगे। तो ज़ाब्ता हमें हासिल होगा जी बराबर जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत। जी बराबर जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत। तो ये आर की जगह पर कैपिटल आर दर्ज करने पर हासिल हुआ। अब इसमें जी की कीमत और एम की कीमत और आर की कीमत दर्ज करने के बाद हमें जी की कीमत हासिल होती है। जी चूंकि इसरा है, एसआई निज़ाम में इसरा एक ही जो इकाई है वही जी की इकाई होगी, यानी जी भी ये ज़मीन का शकली इसरा है, यानी इसकी इकाई होगी मीटर फी मुरब्बा सेकंड। अब ज़ाब्ते में कीमतें हम दर्ज करेंगे। कैपिटल जी हमें मालूम है, कायनाती मुस्तकिल है 6.67 ज़रब 10 की मनफी 11 कुव्वत न्यूटन मुरब्बा मीटर फी मुरब्बा किलोग्राम। ज़मीन की कमियत हमें मालूम है, एम बराबर 6 ज़रब 10 की 24 कुव्वत किलोग्राम। आर यानी ज़मीन का निस्फ कुतर 6.4 ज़रब 10 की 6 कुव्वत मीटर है। तो ये कीमतें ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे जी बराबर जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत में। छः सात ज़रब 10 की मनफी 11 कुव्वत ज़रब एम 6 ज़रब 10 की 24 कुव्वत और आर 6.4 ज़रब 10 की 6 कुव्वत कौंस की दूसरी कुव्वत। अब ये 6 ज़रब 6.67 करेंगे, 6 सत्ते 42, 42 के 2 हासिल है 4, 6 6 36 और 4 40, 40 के सिफर हासिल है 4, 6 6 36 और 4 40। इस तरह यहाँ पर 2 मुकाम के बाद अशारिया है, तो यहाँ पर 2 मुकाम के बाद अशारिया लगाएंगे। ज़रब 10 की मनफी 11 कुव्वत जमा 24 और फिर नीचे 6.4 ज़रब 6.4 2 मरतबा ज़रब 10 की 6 कुव्वत की दूसरी कुव्वत है 6 दूनी 12 कुव्वत। इस तरह अब यहाँ पर हम अशारिया हटाएंगे, नीचे 1 और 1 2 मुकाम अशारिया हटाना है दाएं तरफ, यहाँ पर भी 2 मुकाम अशारिया दाएं तरफ हटेगा। तो हमें हासिल होगा 4002 बटे 64 ज़रब 64 ज़रब 10 की नफ़ी 11 जमा 24 13 आया, 12 यहाँ पर ऊपर लेने पर नफ़ी 12 हुआ। इस तरह 13 नफ़ी 12 10 की पहली कुव्वत बचा। इस तरह ये 4002 ज़रब 10 की पहली कुव्वत। अब 64 ज़रब 64 हम पिछले हिसाब में कर चुके हैं, अभी भी तुम कर लो। उसका जवाब आता है 4096। अब ये सिफर यहाँ पर लगाने के बाद कितने हुए 40,020 को 4096 से तकसीम करना है। ये तकसीम करो और उसका जवाब चेक करो। तो ये इसके मुताबिक आया है नहीं, देखो पहले हम अंदाजा देखते हैं। यहाँ पर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 के अंदर तक, 4 9 36, तो 9 से ज़रब करके
यहाँ जो जवाब आया है 36,864 यहाँ पर लिखे। नफी करने के बाद ये इतना आया। अब यहाँ पर एदाद खत्म हो गए, अशारिया लगाकर हम सिफर लिए। अब यहाँ पर 31 है, 4 का पहाड़ा 31 के अंदर तक पढ़ेंगे। 4 सत्ते 28, 4 अटे 32 ज्यादा होता, इसलिए 4 सत्ते 28 हम जर्ब करके देखेंगे। यहाँ पर आता है 28,672। यहाँ पर नीचे लिखे, नफी करने पर ये अदद आया, इशारिया के बाद और सिफर हम ले रहे हैं, फिर वही हमको करना है। 4 सत्ते 28 तकसीम होता है, यही अदद हम ले रहे हैं। यहाँ पर नफी करने पर जवाब आया 208, इस तरह नीचे बाकी। और यहाँ पर जो जवाब आया है 9.77, ये जमीन का शकली इसरा है। इस तरह ये तकसीम करने के बाद 9.77 जी की कीमत हमें हासिल हुई, मीटर फी मुरब्बा सेकंड। तो ये शकली इसरा जमीन पर किसी भी शय के लिए यकसा होता है, क्योंकि हम ज़ाब्ते में देखे हैं कि किसी भी शय की इसमें कमियत या उसका कोई फासला वगैरह इसमें नहीं है। जी बराबर जी कैपिटल एम बटे आर की दूसरी कुव्वत, यानी ये ज़मीन की कमियत और ज़मीन का निस्फ कुदर का ताल्लुक इसमें है। सवाल, जी की कीमत दुगना होती तो क्या होता? अब इसका जवाब मालूम करना है हमको, थोड़ा सा हल करेंगे इसे। जी की कीमत बदल रही है, यानी फर्ज करो जी डैश है ना, कायनाती मुस्तकिल। अगर 2 जी है तो हम ज़ाब्ते में दर्ज करके देखेंगे। ज़ाब्ता है जी बराबर जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत। जी की जगह नई कीमत आएगी जी डैश, तो ये कीमत बदलेगी, तो शकली इसरा जी डैश बराबर ज़ाब्ता बनेगा जी डैश एम बटे आर की दूसरी कुव्वत। तो अब ये जी डैश की जगह पर हमको 2 जी डालना है, तो जी डैश बराबर 2 जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत, इस तरह आएगा। लेकिन ये जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत क्या है? जी है, तो ये इसकी जगह पर हम इस तरह जी दर्ज करेंगे। तो जी की कीमत दुगना होती है तो इसरा की कीमत, शकली इसरा की भी कीमत दुगना हो जाएगी। जी की कीमत दुगना हो जाती है। अगला सवाल, अगर जमीन की कमियत दुगनी और निस्फ उतर आधा कर दिया जाए तो जी की कीमत क्या होगी? एम डैश यानी नई कमियत दुगनी 2m, निस्फ उतर आर डैश आधा, पहले का आधा यानी 1/2 आर। ज़ाब्ते में हम डालकर देखेंगे। ज़ाब्ता मालूम है हमें, जी बराबर जी एम बटे आर की दूसरी कुव्वत, यानी जी डैश कितना होगा, नई जी की कीमत क्या होगी हम मालूम कर रहे हैं। तो जी एम डैश बटे आर डैश कौंस की दूसरी कुव्वत, एम डैश की जगह पर 2m लिखेंगे, आर डैश की जगह पर 1/2 आर लिखेंगे। तो इस तरह जी ज़रब 2m बटे 1/2 आर की दूसरी कुव्वत, तो ये 2 सामने लेंगे, 2gm 1/2 की दूसरी कुव्वत यानी 1/4 आर की दूसरी कुव्वत। तो इस तरह 1/4 ऊपर लेंगे, 4 ऊपर आया माकूस होकर, तो 2 ज़रब 4 ज़रब gm बटे आर की दूसरी कुव्वत, 4 दूनी 8 gm बटे आर की दूसरी कुव्वत क्या है? ज़ाब्ता है हमारा जी, इस जगह पर जी लिखेंगे। तो इस तरह ये
8 जी यानी 8 गुना, जी डैश बराबर 8 गुना। जी की कीमत 8 गुना हो जाएगी। इस सवाल का हल अपनी बयाज में लिख कर लें। सवाल नंबर 2, ये हल भी लिख कर लें। जी की कीमत में होने वाली तब्दीली। सतह ज़मीन पर तब्दीली। ज़मीन महवरी गर्दिश कर रही है, इसलिए ज़मीन मुकम्मल तौर पर कुर्रवी नहीं है। कुतुबैन की जानिब हिस्सा सपाट है, फ़तह की जानिब उभरा हुआ इलाका है। मरकज से कुतुबैन का दरमियानी फासला कम है, इसलिए यहाँ पर जी की कीमत ज़्यादा है। जी बराबर 9.8321 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। मरकज से ख़तः पर फासला ज़्यादा होने की वजह से जी की कीमत कम है। जी बराबर 9.78 मीटर फी मुरब्बा सेकंड। जी की कीमत में ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली होती है। सतह ज़मीन से ऊंचाई कम हो तो तब्दीली कम होती है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का निस्फ़ कुतर 6400 किलोमीटर है। अगर सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर के फासले पर हवाई जहाज है तो हवाई जहाज का मरकज से फासला होगा 6410 किलोमीटर। तो इसके मुकाबले में जी की कीमत 10 किलोमीटर के फासले पर बहुत ही कम मामूली तौर पर तब्दील होगी। मखसूस बुलंदी के लिए जी की कीमत जदोल में बताई गई है। सतह ज़मीन पर 0 किलोमीटर ऊंचाई पर जी की औसत कीमत 9.81 मीटर फी मुरब्बा सेकंड होती है। माउंट एवरेस्ट जो 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जी की कीमत 9.8 मीटर फी मुरब्बा सेकंड होती है। इंसान का तैयार करदा गुब्बारा की सबसे ज़्यादा बुलंदी 36.6 किलोमीटर है। उस बुलंदी पर जी की कीमत 9.77 मीटर फी मुरब्बा सेकंड होती है। खलाई जहाज़ के मदार की ऊंचाई 400 किलोमीटर है, वहाँ पर जी की कीमत 8.7 मीटर फी मुरब्बा सेकंड है। मवासिलाती सैटेलाइट के मदार की ऊंचाई 35,700 किलोमीटर है, वहाँ जी की कीमत 0.225 मीटर फी मुरब्बा सेकंड है। मवासिलाती सैयारा यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इससे हमें टीवी, रेडियो वगैरह की नशरियात हासिल होती हैं। ज़मीन के स्टेशन से सिग्नल भेजे जाते हैं और रिसीवर से सिग्नल हासिल किए जाते हैं। इस तरह जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं जी की कीमत कम कम होती जाती है। शकली इसरात जी की कीमत में गहराई के मुताबिक तब्दीली। ज़मीन का निस्फ़ कुतर आर है और कमियत कैपिटल एम है। शकली इसरात जी बराबर GM बटे आर की दूसरी कुव्वत। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं जी की कीमत तब्दील होती है, आर की लंबाई कम होती जाती है। ज़ाब्ते के मुताबिक आर नसब नुमा में है, छोटे अदद से तकसीम करने पर जी की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ज़मीन का शकली कुव्वत का हिस्सा भी कम हो जाता है, यानी कमियत एम भी कम हो जाती है। इसलिए गहराई में जी यानी शकली इसरा की कीमत कम होती जाती है, यहाँ तक कि मरकज़ में जी की कीमत 0 हो जाती है। हर सैयारा सैयारचे की कमियत और निस्फ़ कुतर अलग अलग होते हैं। हर एक की सतह पर जी की कीमत भी मुख्तलिफ होती है। चाँद की कुव्वत शकल ज़मीन की कुव्वत शकल का 1/6 गुना होती है।
اس لیے مخصوص قوت کا استعمال کر کے چاند پر زمین کے مقابلے 6 گنا زیادہ اونچی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ چاند کی سطح پر اترنے والا پہلا انسان نیل آرم اسٹرانگ نے چاند پر محسوس کیا کہ چاند کی کشش ثقل کم ہے، اس لیے زیادہ اونچی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے۔